Hello students, here we are once again with JPRC Digital Study. Students, today in this video we are going to learn about the poem A Legend of the Northland written by Phoebe Cary. She was an American poet. She was born on September 4, 1824 and was died on July 31, 1871. She was a very good person and also a very good poet. She was the younger sister of Alice Cary, 1820 to 1871. 1849, her poems were published with her sister's poem. And after her death, it was known as Joint Anthologies of Sisters. The prescribed poem for you, The Legend of Northland. In this poem, the poetess describes about a lady who did not like the Peter because of his behavior. Let's see the poem and know what the poet wants to say. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Away, away in the Northland. Northland is उत्तरी देशों में, उत्तरी ध्रुवों में. Away, away दूर दूर तक. Where the hours of the day are few. जहाँ दिन बहुत कम घंटों का होता है. दिन का समय कम और रातों का समय ज़्यादा होता है. Nights are so long in winter. और रातें सर्दियों में लंबी हो जाती हैं. They cannot sleep them through. इसलिए वहाँ पर निवास करने वाले जो वहाँ के निवासी हैं वह पूरी रात नहीं सो पाते हैं, क्योंकि रात सोने के लिए बहुत अधिक होती है, दिन के घंटे कम होते हैं. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it slows, and the children look like bears cub in their funny furry clothes. Where they harness the swift reindeer. जहाँ पर वे उन ध्रुवों के निवासी रेनडियर यानी एक तरह का हिरन है जो स्लेजेस को खींचने का कार्य करता है, उनको वह पालते हैं. और स्लेज एक प्रकार की गाड़ी होती है जो बर्फ के ऊपर बिना पहियों का होता है, जो बर्फ के ऊपर फिसलते हुए चलता है और रेनडियर के द्वारा खींचा जाता है. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब. और वहाँ के बच्चे ऐसे दिखते हैं जैसे भालू के बच्चे हों, क्योंकि उनके कपड़े बड़े ही फनी टाइप के, बड़े मजाकिया ढंग के होते हैं. उसमें उभरे हुए रोएं दिखाई पड़ते हैं. They tell them a curious story. I don't believe it is true. और वे लोग बच्चों को बड़ी ही जिज्ञासा भरी कहानियाँ सुनाते हैं और मैं नहीं मानती कि वह कहानियाँ वास्तव में सत्य हैं. And yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. फिर भी मैं उन्हें सच्चा नहीं मानती, उन कहानियों को सत्य नहीं मानती, फिर भी मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे तुम्हें अवश्य ही एक सबक मिलेगा. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. As you know, जिस तरह से आप जानते हो कि पीटर ये पादरी है, वह जो है जिस तरह से प्रीच किया करता है, उपदेश दिया करता है, जैसा कि हम परिचित होते हैं कि पादरियों का कार्य ही, पादरी और पुजारियों का कार्य क्या होता है? उपदेश देना. वह भी उपदेश देता है. Once when the good Saint Peter lived in the world below. और इसी जगह पर अपना चिर परिचित अंदाज में रहने वाला जो एक पीटर है, वह भी उपदेश दे रहा है, उपदेश देता है और घूमता रहता है. He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. He came to the door of a cottage. During his walking, अपने उस यात्रा के दौरान जब पीटर घूम रहा होता है तो वह एक ऐसे दरवाजे पर घूमते हुए पहुंचता है, पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए. Where a little woman was making cakes, जहाँ पर एक महिला केक बना रही है. And baking them on the hearth. hearth means the अंगीठी, और उन केक को अंगीठी के ऊपर सेक रही है. And being faint with fasting, for the day was almost done. क्योंकि दिन बीत चुका है और भूख के कारण वह लगभग बेहोश होने की कगार पर है.
he asked her from her store of cakes to give him a single one. इसलिए वह पादरी उस महिला से जो केक सेंक रही होती है उससे कहता है कि वह अपने केक के उस भंडार से जो उसने ढेर सारे केक शेक रखे हैं उसमें से एक उसको दे दे. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. So she made a very little cake. इसलिए वह महिला जिसको उसने देखा था वह एक छोटा सा केक बनाती है एज इट बेकिंग से, लेकिन जैसे ही वह उसको पकाने के लिए छोड़ती है अंगीठी पर, लुक एट इट, उसकी ओर देखती है, एंड थॉट, और सोचती है, टू लार्ज टू गिव अवे, किया उस पादरी को देने के लिए ज्यादा बड़ा है. Therefore she needed another and still smaller one. इसलिए क्योंकि उसने मान लिया था कि पादरी को दिया जाने वाला जो उसके द्वारा बनाया गया केक है वह अधिक बड़ा है, इसलिए वह उससे भी छोटा एक केक अंगीठी पर पकने के लिए रखती है. But it looked when she turned it over as well as the first has done. लेकिन जैसे ही वह उस केक को पलट कर देखना चाहती है तो वह उतना ही बड़ा दिखाई पड़ रहा है जितना कि इसके पहले वाला केक था. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she could not part with that. And then she took a tiny scrap of dough and roll it flat. और तब वह एक बेलन लेकर के उसको इस तरह से बेल देती है कि वह फ्लैट हो जाए, चिपटा हो जाए. And baked it thin as a wafer, but she could not part with that. और वह उसको चिपटा करके, छोटा करके उसको सिकने के लिए छोड़ देती है. For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. और जब वो उस केक को पूरी तरह से सेंक लेती तो वह कहती है कि यह किसी को देने के लिए ज्यादा बड़ा केक है, इसलिए इस केक को मैं किसी और को नहीं दूंगी बल्कि मैं स्वयं इस केक को खाऊंगी. और इस विचार से वह महिला जो केक को सेंक रही है उस केक को अपनी स्वयं की सेफ में, अपनी स्वयं की अलमारी में छुपा करके रख देती है. Then good Saint Peter grew angry. और इस पर वह जो अच्छे सेंट थे, अच्छे साधु थे पीटर, वह गुस्सा हो जाते हैं. और ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वह अभी भी भूखे थे और बेहोशी की कगार पे थे, भूख के मारे मरे जा रहे थे. एंड श्योरली सच अ वुमन वाज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट. और निश्चित रूप से ऐसे पादरी को जो गुस्सा नहीं करते थे, ऐसे पादरी को वह महिला केक न दे करके उनके गुस्से को और भी उत्साह और भड़का रही थी. एंड ही सेड, और उन्होंने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश. उन्होंने कहा, है महिला तुम बहुत ही स्वार्थी हो. टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म, जो कि एक मानव के रूप में निवास कर रही हो, मानव हो, फिर भी तुम बहुत स्वार्थी हो. टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म. और तुम्हारे पास जो ये फूड है, भोजन है, और शेल्टर मीन्स पनाह है, दोनों स्वयं के लिए ही तुम रख रही हो, इसका किसी और के लिए उपयोग नहीं करती हो, इसी में जली जा रही हो. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड. और तुम्हारा स्वभाव कैसा है? एक पक्षी की तरह जो स्वयं का घोंसला बनाता है और स्वयं के लिए भोजन इकट्ठा करता है. बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड. और दिन में सूखे जंगलों में अपने भोजन की तलाश में, अपने घोंसले के लिए तिनके की तलाश में घूमता रहता है, विचरण करता रहता है. ठीक उसी पक्षी के समान तुम्हारा स्वभाव है. Then up she went through the chimney, never speaking a word. और तब उसकी बातों को सुनकर के वह महिला उस चिमनी की ओर जाती है और कोई भी एक शब्द भी नहीं कहती है. Out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. और उस चिमनी की ओर जाते हैं वह एक कठफोड़वे के रूप में परिवर्तित हो जाती है और उड़ जाती है. She had a scarlet cap on her head and that was left the same. क्योंकि जब वह केक बना रही थी तो उसके सिर पर एक कैप लगी हुई थी और कठफोड़वे के रूप में भी वह कैप उसके सिर पर विद्यमान रहती है. But all the rest of her clothes were burned black as a coal in
द फ्लेम, क्योंकि वह उस चिमनी के रास्ते से निकलती है, इसलिए उसके सारे कपड़े जल गए हैं और उसका जो शरीर है वह चितकबरे रंग का हो गया है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, और हर एक देश में चाहे जो बच्चे हों वह कठफोड़वा को अपने आसपास अपने पड़ोस में देखते हैं। वेयर शी लिव्स इन द ट्री स्टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, क्योंकि पहले भी वह सेल्फिश थी और आज के समय भी अपने फूड के लिए इस तरह से एक्ट करती है, अपने भोजन के लिए इस तरह से एक्ट करती है कि लोग उसकी आवाज़ को उसके कृत्य को देख करके ऊब जाया करते हैं। Dear students, read the lesson with the help of this video. We will meet with the next chapter. Till then, thanks.